guys, welcome to my channel. So in this video I am going to discuss the question and answers of the chapter Getting to Know Plants. So the question number 1 is correct the following statements and rewrite them in your notebook. So here the statement is given which is wrong, and you have to correct it and then write it the correct answer. Alright, so number 1A is stem absorbs water and minerals from the soil. So this statement is totally wrong, as we have already studied that stem doesn't absorb water and minerals, but roots absorb water and minerals. So the correct answer is roots absorb water and minerals from the soil. Number B, leaves hold the plant upright. So here also the statement B is totally wrong, because leaf doesn't hold the plant upright, but stem hold the plant upright. So the answer is stem. Stem hold the plant upright. Now C, roots conduct water to the leaf. So this statement is also wrong. So stem conduct water to the leaves. ठीक है, leaves में कौन water पहुंचाता है? Stem. root से stem में आता है, फिर stem से leaves में जाता है. All right. Then number D, the number of petals and sepals in a flower is always equal. So this statement is also wrong. तो number of petals and sepals equal नहीं होते. Isn't it? हम लोग ने ये देखा भी था. ठीक है, पढ़ते समय भी हम लोग ने देखा था कि लीव्स ये फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स एक से एक नहीं होते, इक्वल नंबर नहीं होता है. सो द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल. ठीक है, हमेशा ही इक्वल नहीं होते. कभी कभी सेपल ज़्यादा होता है, पेटल्स कम होता है. कभी कभी पेटल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं और सेपल्स कम होता है. ओके, सो नंबर ई, if the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. So this statement is also wrong, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर सेपल्स जॉइन है तो पेटल्स भी जॉइन होगा, और अगर पेटल्स ओपन है तो सेपल्स भी ओपन होगा. तो ऐसा नहीं है. तो हमारा ई आंसर क्या होगा? इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, इट्स पेटल आर सेपरेट एंड नॉट जॉइंड टुगेदर. नेक्स्ट, F, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petals. So the answer is, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily joined to the petal. तो ज़रूरी नहीं है कि pistil जो है वो petal से join हो. So guys, now we will move on to the question number 2. Now question number 2, draw a leaf, a taproot and a flower. You have studied for table 7.3. So अब इसमें आपको कौन सा बनाना है? लीफ, टैप रूट एज वेल एज फ्लावर, जो हम लोग ने टेबल 7.3 में जो हम लोग ने स्टडी किया था जिस फ्लावर के बारे में, तो उसका हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है. उस फ्लावर की यहाँ लीफ ड्रॉ करनी है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लीफ ड्रॉ हो रखा है, टैप रूट ड्रॉ हो रखा है. ठीक है, अब टैप रूट और फाइब्रस रूट में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप लोग ने पढ़ा था टैप रूट में एक मेन रूट होती है. ठीक है, तो जिसमें मेन रूट होती है वो टैप रूट होता है. तो टैप रूट की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपको फ्लावर की पिक्चर ड्रॉ करनी है. Okay guys, now we will move on to the question number 3. Now question number 3 says, can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but a weak stem? Write its name. In which category would you classify it? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके घर में आपने आसपास कोई ऐसा प्लांट देखा है जो कि लंबा तो है, उसकी स्टेम लंबी तो है, लेकिन बहुत ही वीक है. तो ऐसा ही बहुत ही यहाँ पे मैंने एक कॉमन प्लांट का नाम लिया है जो कि मोस्टली लोगों को इजीली देखने को मिल जाता है, उनके घरों में होता है या उनके नेबर्स में होता है. तो ऐसा कौन सा प्लांट होता है? मनी प्लांट, जिसका कि जो है स्टेम जो है बहुत ही वीक होती है और लॉन्ग होती है. तो मनी प्लांट हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, इट इज़ अ क्लाइंबर. और मनी प्लांट कैसा होता है? क्लाइंबर. क्लाइंबर क्यों होता है? क्योंकि स्टेम वीक होती है, तो इसको सपोर्ट चाहिए होता है चढ़ने के लिए. ऑल राइट. Question 4, what is the function of a stem in a plant? अब stem का क्या function होता है plant में? So the function of stem in a plant, it holds the branches, leaves, flowers and fruits. तो stem का क्या एक function होता है? नंबर 1 क्या है कि ये जो है branches को hold करता है, leaves होते हैं उसमें, flowers होते हैं as well as fruits, इनको वो hold किया जाता है. नंबर 2 है the stem transports water and minerals from roots to the upper parts. अब next क्या है? जो root जो सारा water and minerals absorb करता है, तो root से stem जो है water and minerals को ले करके plant के other parts of the plant तक पहुंचाता है. नेक्स्ट है इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स. अब थर्ड क्या है? जो लीव जो फूड प्रिपेयर करती है, तो उसको भी जो है स्टेम जो है पूरे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 5,
Which of the following leaves have reticulate venation? अब reticulate venation क्या होता है ये हमने पढ़ा था। तो टू टाइप्स ऑफ वेनेशन होते हैं, वन तो पैरेलल हुआ, सेकंड हुआ रेटिकुलेट। रेटिकुलेट जिसमें कि नेट लाइक वेन्स हमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो किस किस में पाई जाती है, इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करके आंसर में लिखना है। तो वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज। तो किस किस में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, तो तुलसी में होता है, कोरिएंडर में होता है, एज वेल एज इन चाइना रोज में। तो इन 3 प्लांट्स में जो है रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। Question 6. If a plant has fibrous root, what type of venation do its leaves likely to have? अब क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी कोई ऐसा प्लांट है जिसकी की रूट फाइब्रस है तो उसकी लीव का वेनेशन क्या होगा। तो लीव का वेनेशन क्या होगा, इट्स पैरेलल वेनेशन। ओके, सो द आंसर इज पैरेलल वेनेशन। Question 7. If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? अब इसमें पूछ रहा है कि अगर प्लांट की जो लीफ है वो रेटिकुलेट वेनेशन शो कर रही है तो उसकी रूट कैसी होगी। तो उसकी रूट कैसी होगी, टैप रूट होगी। ओके, सो द आंसर इज टैप रूट। Question 8. Is it possible for you to recognize the leaves without seeing them? How? Now here the question is saying कि लीफ को देखे बगैर क्या आप बता सकते हैं कि लीफ का वेनेशन क्या है, कैसा इसका वेनेशन है, पैरेलल है या रेटिकुलेट है। तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, हम लोग रूट्स को देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो यस, आंसर इज यस, वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीव्स बाय लुकिंग एट इट्स रूट्स। Plants have leaves with reticulate venation have taproot, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. तो जिस प्लांट की जो रूट है अगर वो टैप रूट है, दैट मीन्स उसकी लीफ कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनेशन होगी। और जिस प्लांट की रूट फाइब्रस रूट होगी तो उसके लीफ वेनेशन कैसी होगी, पैरेलल होगी। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसका नेम आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एज वेल एज पिस्टल। ओके, तो ये मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होते हैं। Question 10. Which of the following plants have you seen? Of those that you have seen, which one have flowers? अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कौन कौन से प्लांट्स देखे हैं और जो प्लांट्स आपने देखे हैं उनमें किस किस में जो है फ्लावर्स होते हैं। तो ग्रास, मेज, बीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, सीशम, बानियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमोग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगरकेन, पोटैटो, ग्राउंडनट। अब पूछा इनमें से आपने कौन कौन से प्लांट्स देखे हैं और उनमें से किन किन में फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से देखे, तो मैंने तो इतने ही देखे हैं और आपने अगर और भी देखा आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने लिखा ग्रास, मेज, बीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, बनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पपाया, बनाना, लेमन, शुगरकेन, पोटैटो। अब प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स, अब इनमें से किन किन में फ्लावर्स होता है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स होता है, ठीक है, फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो किन किन में फ्लावर्स पाए जाते हैं, मेज, बीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, सीशम, बनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमोग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन एंड पोटैटो। तो इन सारी चीजों में क्या होता है, फ्लावर्स होता है, जो कि फ्लावर्स आफ्टरवर्ड्स इट मॉडिफाइड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फ्रूट्स में हो जाते हैं। ओके गाइस, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। Name the part of the plant which produces its food. Name this process. अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट का वो पार्ट का नाम बताओ जो कि फूड प्रोड्यूस करता है और किस और जो फूड प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो कौन सा प्लांट का पार्ट है जो कि फूड प्रोड्यूस करता है, दैट इज लीव्स, ठीक है। सो लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसका प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। ओके, सो लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Question 12. In which part of a flower you are likely to find the ovary? अब पूछा ovary हमें किस फ्लावर के पार्ट में मिलता है। तो किस फ्लावर के पार्ट में मिलता है, so the ovary is located in the lowermost and swollen part of the pistil of flower. फ्लावर के पिस्टल में मिलता है। पिस्टल क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिला के पिस्टल बनता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। और जो ओवरी होता है वो एकदम नीचे की तरफ होता है, स्वॉलन पोर्शन की स्वॉलन होती है ओवरी नीचे। और ओवरी के अंदर क्या होता है, डू यू रिमेम्बर, क्या हम लोग ने देखा था, ये मैंने आपको दिखाया भी था जब मैं एक्सप्लेन करी थी चैप्टर। तो ओवरी के अंदर क्या आपको दिखाई दिया था, बीड्स लाइक ओव्यूल्स, ठीक है। तो हमको ओवरी कहाँ पे मिलती है, तो ओवरी इज लोकेटेड इन द लोअर मोस्ट ऑफ स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल ऑफ फ्लावर। Question 13. Name two flowers each with joined and separated sepals. अब इसमें पूछा उन 2 flowers के नाम बताएं जिनके joined and separated sepals हैं। तो plants with joint sepals, किन किन plants में joint sepals होता है, तो धतूरा एंड टोमेटो फ्लावर। तो इनके जो sepals होते हैं वो joined होते हैं, ठीक है। और sepals क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा भी था और देखा भी था, जो फ्लावर के नीचे का ग्रीन पार्ट होता है
ठीक है, उसको हम सेपल्स बोलते हैं, isn't it? एंड नेक्स्ट है प्लांट्स विद सेपरेटेड सेपल्स, और इनके सेपल्स सेपरेट होते हैं, तो लोटस एंड रोज, तो इन फ्लावर्स के जो सेपल्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। तो गाइस आज हमारा जो है ये चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर का अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है पूरी तरीके से, या तो आप जो है मेरे वीडियो में जा सकते हैं और वहाँ पे आप इसको पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं पूरे लिंक सारे चैप्टर के मैं लिंक सेंड कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप पूरे चैप्टर को एक बार फिर से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।